जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 22। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। ऐसा योगी अपने आत्मा को अनुभव से जानने के बाद आत्मा में तन्मय होकर सदा आत्म सुख में रहता है। इस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा वह कुछ भी लाभ नहीं मानता। उस समय चाहे भारी दुख का पर्वत भी उसके ऊपर क्यों न आ पड़े, परंतु फिर भी उसका चित्त कभी विचलित नहीं होता। अथवा चाहे उसका शरीर शस्त्रों से छेद डाला जाए और चाहे वह अग्नि में जा पड़े, परंतु फिर भी आत्म तत्व के महासुख में सोया हुआ चित्त जागने का नाम भी नहीं लेता। जब चित्त इस प्रकार आत्म तत्व में विलीन हो जाता है, तब वह शरीर की ओर कभी भूलकर भी नहीं देखता। उसे अलौकिक आत्म सुख प्राप्त हो जाता है और इसलिए वह इस शरीर के सुख दुखों की सब बातें ही भूल जाता है। Having obtained self-realization, the yogin thinks there is no other gain superior to it, wherein established he is not moved even by heavy sorrow. The self is all blissful, free from delusion and sorrow. The self is all full and self-contained. All the desires are fulfilled when one attains self-realization. That is the reason why Lord Krishna says, there is no other acquisition superior to self-realization. Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యం అధ్యాయం 6 శ్లోకము 22. అటువంటి యోగి తన ఆత్మను అనుభవం ద్వారా తెలుసుకున్న తరువాత ఆత్మయందు తన్మయుడై సదా ఆత్మసుఖమందే ఉంటాడు. ఈ లాభాన్ని పొందాక మరొక దేన్ని అంతకన్నా మించిన లాభమని అంగీకరించడు. ఆ సమయాన అత్యధికమైన దుఃఖమనే పర్వతం పైన పడినా కూడా అతని చిత్తము ఏమాత్రం విచలితం కాదు. లేదా అతని శరీరము శస్త్రాలచే ఛేదించబడినా లేదా అది అగ్నిలో పడిపోయినా కూడా ఆత్మతత్వ మహాసుఖంలో నిద్రపోయిన అతని చిత్తము మేలుకొనదు. చిత్తం ఈ విధంగా ఆత్మతత్వంలో విలీనమైనప్పుడు అతడు పొరపాటును కూడా తన శరీరం వైపు చూడడు. అతనికి అలౌకిక ఆత్మసుఖం లభిస్తుంది. అందుచేత అతడు ఈ శరీర సుఖదుఖాల సమస్త విషయాలను మర్చిపోతాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసన్నం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അത്തരമൊരു യോഗി അനുഭവത്തിലൂടെ തൻ്റെ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആത്മാവിൽ ലയിച്ച് എപ്പോഴും ആത്മീയ സന്തോഷത്തിൽ തുടരുന്നു. ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മറ്റൊരു ആനുകൂല്യവും അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് എത്ര വലിയ ദുഃഖം അവനുണ്ടായാലും അവൻ്റെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥമാകുന്നില്ല. അഥവാ അവൻ്റെ ശരീരം ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കുകയോ തീയിലേക്ക് എറിയപ്പെടുകയോ ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക. പക്ഷേ ആത്മാവിൻ്റെ മഹാനന്ദത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനസ്സ് ഇപ്പോഴും ഉണരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ രീതിയിൽ മനസ്സ് ആത്മാവിൽ ലയിച്ചു ചേരുമ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ പോലും അത് ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല. അയാൾക്ക് അമാനുഷികമായ ആത്മീയ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അവൻ മറക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. असा योगी अनुभवाद्वारे आपल्या आत्म्याला जाणून घेतल्यानंतर आत्म्यात लीन होतो आणि नेहमीच आध्यात्मिक आनंदात राहतो. हा लाभ मिळाल्यानंतर तो यापेक्षा मोठा दुसरा कोणताही लाभ मानतच नाही. त्यावेळी त्याच्यावर दुःखाचा मोठा डोंगर कोसळला तरीही त्याचे मन कधीही विचलित होत नाही. किंवा त्याच्या शरीरावर शस्त्रे भोकसली गेली किंवा त्याला आगीत टाकले
पण तरी आत्म्याच्या महान आनंदात झोपलेले मन जागे होण्याचा विचारही करत नाही. जेव्हा मन अशा प्रकारे आत्म्यात लीन होते तेव्हा तो चुकूनही शरीराकडे बघतच नाही. त्याला अलौकिक आध्यात्मिक आनंद मिळतो आणि म्हणूनच तो या शरीरातील सर्व सुख दुःख विसरतो. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. एहन योगी अपन आत्मा के अनुभव से बुझ कऽ आत्मा में स्थिर भऽ कऽ सदिखन आत्म सुख में रहैत अछि. ई प्राप्त भेला पर ओ संसार में और कोनो तरहक लाभ के उचित नहीं मानैत अछि. जब भारी दुखक पहाड़ो ओकरा जीवन पर टूटि पड़य तैयो ओकर चित्त कखनो विचलित नहीं होइत अछि. ओकर देह शस्त्र सँ छिन्न भिन्न कऽ देल जाय वा ओ अग्नि में पड़ि जाय, आत्मतत्वक महाआनंद में डूबल चित्त कखनो जागैत नहीं अछि. जखन चित्त आत्मतत्व में लीन भऽ जाइत अछि तखन ओ शरीर दिस फेर कऽ देखबो नहीं करैत अछि. तखन ओकरा अलौकिक आत्मसुख प्राप्त होइत अछि आ देहक सुख दुख ज्वर जरा के बिसरि जाइत अछि. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.